अस्सलामुअलैकुम, खबरार में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, शो के आगाज़ में चलते हैं ख्वाजा सराओं के यहाँ, जो इस वक्त महवे ख्वाब है। बाजी कौन है? बाजी चोर कौन है? चोर किथे चोर किथे चोर बाजी सानू चोर लुटन आ गए आ बड़ी सानू लुटन आए जरूरत के मैं पई वे साडे डेरे ते आंदी पत्नी का बाला गल गईयां नहीं बटन दबाओ बालदा बाजी ਇਹ ਚੋਰ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁੱਟੀਆਂ ਵਾ ਤੂੰ ਫੇਰ ਲੁੱਟਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਓਏ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਜੇਬ ਚ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੇ ਮਰੇ ਅਸਾਫਾ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨੋ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਓਏ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਤੇ ਚੱਲ ਉੱਠ ਉੱਠ ਤੈਨੂੰ ਬੰਨੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਇਆ ਓਏ ਓ ਭਾਈ ਜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੇ ਤੇਰੀ ਜੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ 5-6 ਜਣੀਆਂ ਤੇ ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਕਅਪ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਨ ਭਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਣਵੇਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਸਾਫੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਬੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਰਵਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਖੱਚ ਦੀ ਖੱਚ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਵਾ ਮੰਜੀ ਨਾ ਬੰਨੋ ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਸਮੇਤ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਬੰਨਤਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਪਾਊਡਰ ਕਿਹੜਾ 10 ਮੈਨੂੰ ਵੇ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਗੈਂਗ ਆ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਮੈਂ ਬਦਵਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ओए तो तुम्हें वाकई नहीं पता था यहाँ कौन रहता है? सही मैं तो प्रॉपर्टी डीलर समझते आया मेरे को क्या पता खुसरिस्तान च वड़ आया ਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕਮੇ ਹਾਏ ਖੁਸਰੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਤੇਰੀ ਜੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਤੇਰੀ ਦੀ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਖੁਸਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਖੁਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ ਖੁਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਖੁਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੇ जी ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਦੱਸ ਦੇ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਛਲਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ बाजी मेरे को कसम चवा गए मैं छोटा जा चोर हाँ ਹਾਏ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਨੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਨੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਏ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਛੋਰ ਨੀ ਕਿਨੂੰ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵਾਂ ਅੜੀ ਨੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਨੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ क्या बेहूदगी कर रहे कह रहा हो? हूं, उसे मैं कह रहा पुलिस हूं। के हवाले कोई करो। बात ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਦੀ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਵੇ ਪਹਿਲੀ ਚੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸਹੀ करियाने वाले का गोड़ कढ़िया ਵੇੜੇ ਤੇਰੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਪਸਮਾਨਦਾ ਚੋਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੁੜ ਕੱਢਿਆ जी हाँ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਪੱਤੀ ना जी नसवार खमदामल नसवार दी पूरी चाती हैं ਓ ਨਸਵਾਰ
खुशगुलू खुशगुलू खुशगुलू। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਜੇ ਕਾਬਲ ਖੜਾ ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਾੜ 'ਚ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ये किधर से आ गया? उसका मेरे साथ ना फोन पे रहा था, वो कह रहा था मैं जरा लेट नाइट आऊंगा, जब ये सारे मनहूस सो जाएंगे ना फिर मैं आऊंगा। अरे सो गए सी उतो एक घटिया चोर आ गया। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਮੈਂ 3 ਬੇਲਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਮਨੂਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਵੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ। ਚਵਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੂੰ ਲੈਣ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਲਾ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। मेरे सारे ख्वाब चकना चूर हो गए। तेरा खाना खराब, तेरा बेड़ा खराब। लेन की होए हैं। खुशगुलू खुशगुलू खुशगुलू। ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਖਾਂ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚੋਰ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢੀਏ। ਫੜਨੀ ਬਾਜੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਕੌਣ ਹਨ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਗੁਲੂ ਗੁਲੂ ਕਰੇਂਦਾ ਪਏ, ਇਹ ਅਫਗਾਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੀ ਪਠਾਨ। ਓਏ ਧਾੜ ਓਏ ਤੇਰਾ ਕਾਰਾ ਕਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੇ ਪਏ ਮੇਰੇ ਕੋ? ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅਖਵਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। खुशगुलू खुशगुलू खुशगुलू। ਲੁਕ ਜਾ। आज तो लगता है वो रॉकेट लॉन्चर लेके आएगा। वो क्यों? रात के टाइम वो रॉकेट लॉन्चर रखता है अपने पास। एक दिन मुझे रॉकेट लॉन्चर पे उसने सैल करवाई, मुझे पूरा मार उड़ा। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੋਰ ਨੂੰ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਦੀ ਸੈਲ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਓਏ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਸਦਵਾਓ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਦਵਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? नहीं खुशगुलू खुशगुलू खुशगुलू। ਸਾਈਂ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਇੱਕ ਦੂਰ ਹੈ ਜੜਾ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਗੁਲੂ ਹੈ। ਆਮਦਾ क्यों नहीं ਪਿਆ? मेरा साह मुझदे। अच्छा उसने ना लाइसेंस बनवाना था इसलिए आया हुआ है वो। किस चीज का लाइसेंस? टैंक का। किसका? टैंक का। यार सदवाओ पुलिस ने। देखो बैजा भी बैजा। खुशगुलू खुशगुलू। नहीं, अंदर क्यों नहीं आ रहा? कुंडी खुलेगी तो आएगा ना। लाओ उसे अंदर। चोर पकड़ती हमने कुंडी लगा दी थी। सलमान जरा कुंडी खोलो। ਇਹ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, हाँ जी। ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 150 ਦਾ ਟੈਂਕ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ये जो मेरी जान है ना, इसने 150 के 2 लिए थे, एक पूरा हुआ था थोड़ा सा। डू टैंक। अम्मा जी मेरे को क्यों मरवावना है? लुक जा लुक जा। इतना टाइम क्यों लगा दिया? हमने कितना बेले दिए, इतना टाइम यार। अस्सलाम वालेकुम भाईजाना। या कुर्बान या कुर्बान या कुर्बान या कुर्बान। सिर पे क्यों हाथ रखते हो? मेरे अब्बू तुम। नहीं मैं बोल रहे दुपट्टा नहीं गिरे ना। अच्छा खुशगुलू, मैं बाहर सुन रहा था, अंदर कौन सा ऐसा मखलूक था जिसका आवाज आ रहा था? वो अम्मी बोल रही थी। अच्छा माँ जी। सदके जावा। नहीं माँ जी मैं नहीं आ रही। सदके जावा हो रहा था। माँ जी मैं दूर दूर से बस नहीं। हो रहा था माँ जी नहीं ना आते। मैं सदके जावा नहीं। मेरा पोतरा है, मैं सदके जावा। माँ जी एक तो आप ये चुमी नहीं लिया करो किसी गोंद का तेरे का बच्चा। खुशगुलू तुम्हारे लिए मैं एक चीज लेके आया हूँ। कुछ ना कुछ लेके आते हो। लेकिन उससे पहले भाईजाना, मैंने खुशगुलू को ख्वाब में देखा है। अच्छा। किसी चोर का बच्चे से इसका शादी हो रहा था। फिर उसके आगे क्या हुआ? फिर एक भूत निकल आया। अच्छा फिर? भूत को तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन चोर को मैंने पकड़ा और बीच में से काट के पर कर दिया। पर कर दिया? ये कौन है? ये वही भूत है। पिस्टल लाए हो? हाँ पिस्टल लाए है ना। किधर है? ये रहा। वो तुम्हारा। ये चोर है। गोली चला? नहीं कोई नहीं चला। तो फिर ये कैसे गिर गया? खुशगुलू ये चोर इधर क्या कर रहा है? तुम्हारी ख्वाब में चोर आया था ना? हाँ आया था। ये वही है। नहीं तो फिर ये इधर क्या कर रहा है? तुमने ख्वाब देखा, तुमने बताना है, हमें क्या पता। हाँ बात तो सही कहता है, लेकिन खुशगुलू ये तो मर गया लगता है। तुम्हारे पे 302 हो जाएगा। मैं मर गई। लेकिन नहीं, तुम्हारे जगह मैं जाऊंगा। किधर? अपने वतन है।
देखा जान छुड़ा रहा है, ओखे वक्त में हमारे काम आना तुमने। सबसे पहले इसको ठिकाने लगाओ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे इधर कोई काटा बाटा है? कटा बटा तुम्हारा वेड़ा है ना? हाँ जी। उधर खड्डा खोदो, इसको दफन करो। दाढ़ी ओए ਇਹਦੀਆਂ ਕੀ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। मैं एक काम करते भाईजाना, वो क्या? अगर तू ये मर गए, मैं इसको गोली मारते, इसको दर्द बिल्कुल नहीं होगा। ओके खान साहब मेरे को ना मारी, अल्लाह दा वास्ता है। खान साहब मैं बड़ा गरीब हाँ, मेरा आगा पीछा कोई कह नहीं। खान साहब मैं बड़ा गरीब हाँ, मेरा आगे पीछे कोई क्या नहीं। खुदा वास्ते तरस खा ते मेरे को माफ कर दो। खुदा वास्ते तरस खा के मेरे को माफ कर दे। आज तो बाद इन्हें खुसरियां दे घर में कहना आ सा। एक मिनट, खुशगुलू जी जान, तुम लोग कुछ रहे? या और मैं जो मजाल पड़े इसकी शक्ल पे लो ना, तुमने जरूर ये लफ्ज कहना है, तुमने जरूर ये लफ्ज कहना है। साडी भैन दा घर बर्बाद कर दी करीला। चोर का बच्चा जो भी इसके मुंह में आता है बकता रहता है। ये तो चोर का बच्चा है, तुम हमारा जिगर हो, हमारी जान हो। क्या खबर थी तेरी महफिल से बिछड़ना होगा, क्या खबर थी तेरी महफिल से निकलना होगा, दिल न चाहेगा राज में जलना होगा, क्या खबर थी तेरी महफिल ते निकलना हो। है चोर किथे गया? ओ चोर नु मार गोली, मेरी रजाई किधर गई है? तो तीन हजरात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो तीन हजरात, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, और आज सबसे पहले दो नए अल्फाज। वाह जी वाह। लफ्ज है पुरसा। किसी से गम गुसारी करना। शाबाश। पुरसा सर फारसी का लफ्ज है। हाँ जी, पुरसा फारसी का लफ्ज है, और इसका मतलब किसी से गम गुसारी नहीं, किसी के साथ ताजियत करना। ये बात अफसोस करना, शामिल होना। अब इसमें दो मसाइल हैं। एक तो पुरसा हे से मत लिखा करें, पुरसा हमेशा अलिफ से होना चाहिए, क्योंकि ये फारसी लफ्ज़ है और इसका मंबा यानी पर्शियन है, फारसी है। पुरसीदन यानी पूछना और दरियाफ्त करना। फरंगे आसफिया के मुताबिक मरने का उज़र, मरने की वजह मालूम करना, और इसकी बाकायदा तारीख है हमारे यहाँ। कोई फौत हो जाता है तो उसके यहाँ जाते हैं, जाकर पूछते हैं, एक रस्मी सा। एक तो ये कि अल्लाह का हुक्म, वो आगे से कहता है अच्छा जी मान लिया है, मन्नी बैठे हैं, मन्नी बैठे हैं, समथिंग लाइक दैट। फिर पूछते हैं कि क्या हुआ, उन्हें बीमार थे क्या, अचानक हुआ। चाहे वो रस्मी है, लेकिन ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, ठीक है। और ये कल्चर सिर्फ इंडियन ही नहीं, इंडिया के बाहर भी ये कल्चर जो है ना, ये फॉलो होता है। बहुत से अरब कंट्रीज़ में और इवन ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में ये राइज है। अच्छा, अब जो ज़्यादा दिलचस्प बात है ना इस हवाले से, है तो अफसोसनाक बात, यानी मौजू अफसोस है, गम है, कॉन्डोलेंस है, ताज़ियत है, लेकिन एक दिलचस्पी का पहलू इसमें यह है कि ये अफसोस करने के मानों में किस तरह आ गई, क्योंकि असल चीज़ तो मरने का उज़र मालूम करना होता है, असल चीज़ तो मरने की वजह मालूम करना है। वाह। कॉन्डोलेंस और चीज़ है। इसका तो ये कि यार बड़ा अफसोस हुआ, आपके वालिद साहब का, आपके भाई साहब का, आपकी बेगम का, आपके शौहर का इंतकाल हो गया, बड़ा अफसोस हुआ, दैट्स इट। लेकिन क्या हुआ, कैसे हुआ, पुरसा ये है जी। अब ये अफसोस के मानों में इस तरह कन्वर्ट हुआ कि जब आप पूछते हैं ना कि क्या हुआ, तो फिर अगली बात ये फ़ौरन कर देते हैं कि यार बड़ा ही अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, और फिर आप बैठ जाते हैं, फिर आप फातिहा खानी भी करते हैं जी। तो ये सारा सिलसिला पुरसा के अंडर आ जाता है। अच्छा, कुछ माशरे ऐसे हैं, कुछ कल्चर्स ऐसे हैं जिनमें पुरसा इवन अयादत के लिए इस्तेमाल होता है जी। क्योंकि आप कहते हैं ना कि जी मैं उनको पुछन गया, नागी साहब आपने पास से पुछन नहीं जाविंदा। हाँ जी जी सर, पूछने गए हम। इवन कहते हैं हाथ में जो आप फल लेकर जाते हैं, फूल लेकर जाते हैं, इवन कैश लेकर जाते हैं, इसको कहते हैं तेरी पुछनी है, पूछनी है, तेरी की है, पूछनी है। कुछ नहीं। पुछनी है। यानी जैसे आपकी ईद है ना, ये या आपकी शबरात है या आपका गिफ्ट है,
تو اے تیری پوچھ نہیں ہے جڑی میں لے کے آیا. یعنی اگر آپ گاؤں سے آ رہے ہیں ہاں جی اور آپ صاحب حیثیت ہیں تو کسی بیمار عزیز دوست رشتہ دار کے لیے تگڑے دیسی مرغ لے کر جائیں. جی بالکل ایسے ہی. اگر آپ شکاری ہیں تو تیتر بٹیر لے کر جائیں. اور اگر آپ کی حیثیت میرے جیسی ہے تو 2 کھیرے اور 2 متیرے لے کر جائیں. پرسان حال کی ہے وہ بھی اندر نال جڑتا ہے. پرسان حال، حال پوچھنے والا. پرسان کہتے ہیں پوچھنے والا. ٹھیک تو پرسان حال یعنی میرا حال پوچھنے والا. کیا بات. یہ میرا پرسان حال ہے. میرا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں. ہائے ہائے. ہم میں سے اکثر نے اپنی امیوں کو کسی نہ کسی سٹیج پر یہ کہتے سنا کہ میرا تو کوئی پرسان حال ہے ہی نہیں. جی جی بالکل. سوال بہت اچھا کیا ہے انہوں نے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. کیونکہ پرسان جو ہے نا پرسش احوال، کیا بات. یہ حال احوال پوچھنا، پرسش احوال، پرسش غم. پرسش غم، اوئے ہوئے ہوئے. باز پرس ہاں جی کہ اس کی باز پرس کی، اسی اس گال تو پرساں پاشی احوال پرسی. احوال پرسی. ایک مرتبہ قائم علی شاہ نے کہا تھا کہ میں تو ایسے ہی ان کا پرسہ لینے آیا تھا. تو ان کا بڑا مذاق اڑایا گیا کہ پرسہ تو کسی مرحوم کے لیے ہوتا ہے. تو بیچارے چپ ہو گئے، انہوں نے ڈیفینڈ نہیں کیا، کنٹیسٹ نہیں کیا. حالانکہ بعض کلچرز ہیں کہ جن میں پرسہ طبیعت پوچھنے میں کہ میں تینوں پوچھن آیا، میں تمہاری جو ہے نا طبیعت دریافت کرنے آیا ہوں. تو پرسہ بالکل ایگزیکٹلی پرسہ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے. لیکن رائج یہ ہو چکا ہے اور فرنگ آصفیہ بھی یہی کہتا ہے کہ پرسہ موسٹلی تعزیت سے پہلے جو فکرہ ہے نا کہ وفات کی وجہ کیا ہوئی، ہویا کی سے. یہ جو کہتے ہیں نا ہویا کی. ہائے ہائے. اچھا ہویا کی. سبحان اللہ کیا کہنے پرسان حال. اچھا جی اگلا لفظ ہے دلاسا. سہارا دینا، تسلی دینا. حوصلہ دینا. اللہ خیر. لکھنے میں وہی غلطی ہم کرتے ہیں جس کو ہے سے لکھتے ہیں. ہائے ہائے. یہ الف سے لکھنا چاہیے کیونکہ دل آسا کہ دل کو تسلی دینے والا، یعنی یہ مجھے دلاسا دیا اس نے، دل آسا دیا ہے، دل آسا. آس دلائیے. اب آسا کیا ہے؟ آس سے، آس یعنی دل کو آس دلائی ہے، ڈھارس بندھائی ہے. واہ. جڑا کہندا جی تیری آس تے چکیا قدم پہلا. آس امید ہوتی ہے، حوصلہ، یعنی تیری آس تے اللہ تعالیٰ کی آس پر، اللہ تعالیٰ کے حوصلے، اس کے توکل پہ. واہ کیا کہنے. تو دس از آس، دل آسا، اور یہ الف سے ہے. ایک بڑا خوبصورت شعر، بہت شاندار شعر ہمارے دوست ہیں احمد عطا اللہ کہتے ہیں، بڑی دفعہ میں نے سنایا بھی ہے کہ آس وہ روز بندھا جاتا ہے ٹوٹے دل کی. واہ واہ. آس وہ روز بندھا جاتا ہے ٹوٹے دل کی، یوں وہ حالات کو بہتر نہیں ہونے دیتا. کیا اچھا شعر ہے. پوائنٹ ویسے یہ لفظ یاد رکھنا ہی بڑا کام ہے تو انہوں پورے ردم چ لیا وہ ویریشن بنانی. اے کولو ہی بنا ہو سارا کچھ. میرے بھائی نے ایڈے سونے شیر بنا دینے. میرے بھائی یار کی میرے بھائی نے تسی کی کہندے ہو اس بارے. اگلا لفظ بسم اللہ. کارستانی. کارنامہ، کوئی ایسا. کارستانی شیطانیاں کرنا. ہم ایسے قریب ہے. کارستانی، کارستان، گھٹیا کام، غلط فعل، بری حرکت، نیگیٹو کام، کارستانی. یہ کس کی کارستانی ہے؟ ہاں جی. یہ دراصل کار شیطانی ہے. کارستانی جس کا نام. کارستانی نہیں، کار شیطانی. ہاں واہ. یہ سید حامد حسین کی ریسرچ ہے، ماشاءاللہ. بہت بڑے محقق ہیں. یعنی غلط حرکت، شیطانی حرکت جو ہے نا اس کو کار شیطانی کہتے ہیں. حالانکہ کارستان جو ہے نا، کارستان کارخانے کو کہتے ہیں، ایک ورک شاپ کو کہتے ہیں. لیکن نیسسریلی اس کے ساتھ نیگیٹیوٹی جڑی ہوئی ہے کہ ورک شاپ میں بھی ڈیولز ورک شاپ ایک چیز ہے. ڈیولز ورک شاپ، این آئیڈل مینز برین از اے ڈیولز ورک شاپ. ایک جو بیکار آدمی ہے نا، بالکل فارغ، جو کچھ نہیں کر رہا، وہ بڑا خطرناک ہے. کیوں؟ اس کا دماغ شیطان کا گھر ہے. جی جولاں گاہ بن جاتی ہے، شیطان کی لیبارٹری بن جاتی ہے. وہ پھر تجربے کرتا رہتا ہے. اسی لیے اپنے آپ کو مصروف رکھا کرو کم بختو. اچھا جی
छक्के छूटना ये कर चुके हैं, पहले बड़ी दफा कर चुके हैं। छक्के छूटना, होश उड़ गए। जैसे घबरा जाना, परेशान हो जाना, बेबस हो जाना, लोग समझते हैं नाकाम हो जाना, सुस्त हो जाना, स्लगिश हो जाना, ना आपसे चौके लग रहे हैं ना छक्के लग रहे हैं और कैच आपके छूट रहे हैं। ये बिल्कुल लगता है क्रिकेट की कोई इस्तिलाह है, बल्कि पाकिस्तानी क्रिकेट की इस्तिलाह है कि छक्के छूट रहे हैं। या लूडो में छक्के ना पड़ना और काने पड़ते चले जाना। जी मैं एक बार लूडो खेड रहा था जनाब, मैनू छक्का ही नहीं आ रहा सी, ਉਹ ਬਾਕੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬੜੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। नहीं फिर ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਜੀ। ये जो किस्सा शुरू किया था वो घर जाके सोना था उसमें सिर्फ। यार ये क्यों समझता है कि हम इतने फारिग हैं इसकी बात सुनने के लिए। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਤੌਬਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਫਨਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਿੱਛੇ, ਤੌਬਾ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ। ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਰੰਗੀਲਾ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਰਾਣਾ, ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਮੇਰੀ ਦਾਸਤਾਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ। अच्छा जी, छक्के छूटना के बारे में डॉक्टर सुहेल बुखारी की रिसर्च जो है ਹਾਏ ਹਾਏ। वो बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि ये छक्के छूटना नहीं है, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ये छलके छूटना है, छलके छूटना। ਹਾਲ ਹੈ। उनका जो इस्तदलाल है ना, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ। जो उनकी आर्ग्यूमेंट है, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਬੈਠੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰੀ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਸੀ। तो ये दुकान वाला डॉक्टर नहीं, मुहक्किकीन है ये। ਮੁਹੱਕਿਕੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੁਹੱਕਿਕੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਏ ਆ? ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਲੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ, ਦੱਸ ਨਾ। ਚੱਲ ਦੱਸ ਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। वो कहते हैं कि जब कोई परेशान हो जाए, तजब्जुब में हो, घबराहट में हो, तो उसके पसीने छूटते हैं, सही और पसीने भी ऐसे छूटते हैं कि जैसे छलके, चल के यानी छलक छलक जा रहे हो। हाँ ਵਾਹ ਵਾਹ। इसको कहते हैं छलके छूटना। ਹਾਏ ਹਾਏ। वो कहते हैं ना कि इस मौके पर तो उसके छलके ही छूट गए, यानी सब बंद टूट गए, ਓਏ ਹੋਏ। दरिया का दरिया उमड़ आया। हाँ, ਇਹ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। बुखारी साहब कौन से? ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਲਿਆਕਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ। एक डॉक्टर, एक लियाकत, एक ओए सुहेल बुखारी साहब। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਫਰੰਗੇ ਆਸਫੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹ ਸਹੀ ਹੈ ਛਲਕੇ? नहीं नहीं, फरंगे आसफिया की हर चीज हरफ आखिर तो नहीं है। ये बात। आप इख्तलाफ का हक रखते हैं। हम रखते हैं बहुत ज्यादा। बहरहाल छक्के छूटना एक ऐसा गलत उलाम हुआ है कि एक खूबसूरत एक फ्रेज जो है ना वो बर्बाद हो गई है। छक्के छूटना, उसका तुक ही कोई नहीं। छलके छूटना बात ही और थी। छलके, उसके तो छलके छूट गए, देखते ही छलके छूट गए। छक्के छूटना भी छक्के छुड़ाना हो गया अब छक्के छुड़ाना हो गया वाकई। कि तो मैंने उसके छक्के छुड़ा दिए, यानी ऐसे ऐसे छक्के मारे उसको, छक्के छुड़ा दिए। अच्छा जी, आज का शेर। ਵਾਹ 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 ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਭਾਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਾਣ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈਲੋ। ਦੱਸਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਣ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਭਾਣ ਮਨੀਰ जी ਨਿਆਜ਼ੀ। सर, आज का शेर। ਮਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ। अच्छा, मुनीर न्याजी नहीं, लेकिन उनके हम पल्ला, हम असर और कदरे बड़े शायर वाह वाह जी। नासिर काज़मी गजल के हवाले से बहुत बड़ा नाम है, और उनसे सीनियर। और उनसे सीनियर। हाँ जी, सीनियर गजल के बहुत शानदार शायर नासिर काज़मी कहते हैं, अब और कुछ नहीं तो कोई ताज़ा दर्द ही मिले। वाह वाह। वाह वाह। अब और कुछ नहीं तो कोई ताज़ा दर्द ही मिले, मैं एक ही तरह की जिंदगी से तंग आ गया। वाह ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। वेलकम बैक। बहुत हज़रात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए राना सनाउल्लाह और उनके दो गार्ड्स। जी जनाब, क्या हाल चाल है? आफ्ताब साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो मुझे अपने शो में मदऊ किया है। गो के जो है वो काफ़ी अरसा हो चुका है, मैं भी अंदर से ललचाला था कि मैं जो है वो आपके शो में कब जाऊं, कब आप जो है मुझे बुलाएं।
बात रही कि ये दो मुस्टडे आपको आले दुआले दिख रहे हैं, ये है साजा और ये जो है माजा। ये दोनों मेरे महल्ले के बच्चे हैं और ये मेरे सामने ही बड़े हुए हैं। वक्त का पहिया इतना तेज चला, मुझे मानो पता ही नहीं चला कि इतने बड़े हो गए। कैसी लगी एटम ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਬੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। वैसे राणा साहब वाकई आप बाकायदा बोर कर रहे हैं, वहां भी और यहाँ भी। ये तो है। एक बात बताऊं आफ्ताब, जी ये मनजानब अल्लाह होता है, इंसान जो है वो खुद से कुछ नहीं कर सकता। वाह वाह, यानी ये अल्लाह की देन है कि आपको इस कदर फीका और इतना बोर बनाया उसने। कमाल कर रहे हैं आप। एक तो मैं आपको नहीं समझा सकता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟੇਕ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨੀਵੀਂ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਗਏ। ਬਾਰਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਫਕਤ ਕੀਤੀ। नहीं नहीं, मोहब्बत है मेरी। मेरा शफकत दस्त जो है वो तुम्हारे सर पे रहेगा। ਦਸਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਹੁੰਦਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਫਕਤ ਦਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। शफकत दस्त क्या होता है, राणा साहब? इतनी आम सी बात जो है वो आफ्ताब साहब आपको समझ नहीं आई। शफकत ने जो है वो दस्त अपना रखा है इन बच्चों के सर। अच्छा, एक मैं गुजारिश कर सकता हूँ? आपका अपना शो है, आप जो मर्जी करें। ये यार आप राणा साहब की हर जुगत के पीछे डिश लगा दिया करें, डिश। बगैर डिश के आपको मैं अगर जुगत करके दिखा दूं, मानेंगे मेरा कमाल है? जी जी, मैं आपका भी मानूंगा और नून लीग पूरी को खराज तहसीन पेश करूंगा। ओहो, यानी कि आफ्ताब साहब अब तो आपने जो है वो मुझे चैलेंज कर दिया है। लो जी मुस्टंडियो, हाँ जी, मैंने जो जुगत करनी है तुमने मर जाना है हंस हंस के। इज्जत बेइज्जती का सवाल है। लो जी तैयार हो जाए फिर। मैं तैयार हूँ। बदली वेख लो, झटके वाला बांदर हुंदा। वाह वाह राणा साहब, क्या कहने, बहुत अच्छे, शाबाश ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਾਰ ਨੂੰ। शाबाश 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 शाबाश। एक मिनट, एक भाईजान आप हंस नहीं रहे? मैं पागल हूँ हंसूंगा इस बात पे? तो ये पागल है साले। जी ये आप किसकी बात पे हंसे हैं? मैं सोनिया की बात पे हंसा हूँ, उसने कहा है जी। अगर तो आप जी कहने पे हंसते हैं तो मैं भी कह देता हूँ जी। लो जी एक और आ रही है, तैयार रहें। बिस्मिल्लाह। मैंने कहा आफ्ताब साहब फासन योर सीट बेल्ट्स। हाँ जी, आई हैव fastened already। लो जी नागी वेख लो, 100 साल पुराना सब हुंदा। वाह राणा साहब, वाह, 100 साल पुराना। एक मिनट, एक भाईजान आप फिर नहीं हंस रहे? सर यू पुट इवन गिलानी साहब टू शेम। राणा साहब आपने लगता है वेट बहुत रिड्यूस किया है। जी जनाब, मैं बाकायदगी से जो है वो राइडिंग कर रहा हूँ राइडिंग कर रहे हैं जनाब, और 9 केजी जो है वो वजन कम हुआ है। हाँ जी, घोड़े का। घोड़े पे बैठ के करते हैं। लो जी आफ्ताब साहब आमद हो गई है। ਲਓ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈਓ। अब आप हंसे ही हंसे। मैं चैलेंज करता हूँ, आपने हांगकांग के शोले देखी है? हाँ जी देखिए। उसमें ये बदली जैसा बंदा दूर बैठे हराम डिश खा रहा होता है। बहुत अच्छे राणा साहब। मैंने कहा कैसा? अच्छा, मैं आपकी कस्मा पुरसी पे मुस्कुरा रहा हूँ। यार ये क्या बात हुई? ਜੁਗਤ ਜੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਭਾਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਤੁਰਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਹੱਸਾ ਰਹਿਣਾ, ਹੱਸੋ। अच्छा राणा साहब ये बताएं कि अमेरिकी इलेक्शन के बारे में क्या कहते हैं? देखिए जी, आपको पहले भी बताया था कि ट्रंप जो है वो जीत नहीं सकता। नहीं, क्या वजह? वो इसलिए कि अगर एस्टेब्लिशमेंट किसी के खिलाफ हो जाए तो वो वहां पे नहीं जीत सकता। ठीक। और आपने देखा नहीं कि हमारे मुल्क में क्या हुआ है? हमारे मुल्क में और अमेरिका में बड़ा फर्क है। मुझे ये बताइए कि बतदरीज अच्छी खबरें आ रही हैं पीटीआई के हवाले से, कोई डील तो नहीं हो रही? डील तो जो है वो हो गई है और इस बात को 3 हफ्ते भी हो गए हैं। अच्छा जी, हमें नहीं पता चला। वैसे अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि आप पीआईए हमें दे दें, हम 10 अरब से ज्यादा पे करने को तैयार हैं। ना मैंने तो उसको जवाब दे दिया हुआ है। तो आप एक दफा फिर दे दें, ऐसी क्या बात है? वो यही ना कि जाओ तुम अपने लोगों को रोजगार दो, उनके हालात जो है वो ठीक करो, ये सियासत जो है वो बाद में चमकाना। वैसे ये कितना अरसे से दोनों आपके साथ हैं? मैंने कहा बचपन से। आफ्ताब भाई ये इतने इतने बच्चे थे और इस वाले ने तो आंखें ही नहीं खोली थी। अच्छा, मैं आफ्ताब साहब, चूंकि आपको पता है अभी ओलंपिक का जो वफ्द गया था उनमें मैं बंदा था मेन, और उसको मैंने जो है वो लीड किया है। और असल में जो नेज़ा था वो भी एक्चुअल में मैंने ही फेंका था, लेकिन मेडल जो है वो ले गया वो जिनका बच्चा। हमारे कौमी हीरो को ये कह रहे हैं? ना कैसा हीरो है, उसके मसाइल ही खत्म नहीं हो रहे। नहीं, क्या मसाइल क्या है उसके? जिथे जाता है सानू बिस्त करता है,
کہ صرف اعلان کیا ہے اور مجھے کوئی انعام نہیں دیا ہے، یعنی انعام و کرام سے تمہارا منہ ہم نے بھر دیا ہے اور تم یہ باتیں کر رہے ہو؟ نہیں انعام نہیں دیا، کہا ہے. او یار کہہ دینا بھی کافی ہوتا ہے، اور آپ کو ہمارے خزانے کے حالات نہیں پتا؟ یار یہی امان اللہ کے ساتھ نہیں کیا تھا، وہ کیا تھا ہمارا چوہان صاحب. وہ صوبائی وزیر چوہان، ہاں جی ہاں جی. امان اللہ کے ساتھ یہی کیا. امان اللہ کو اس کا افسوس نہیں تھا کہ مجھے 5 لاکھ نہیں ملا. وہ کہتا ہے کہ 5 لاکھ کا سن کے میری جیب میں جو 70,000 تھا میں نے حاتم طائی کی طرح کر نہ وہ ملا نہ یہ. اور اس پہ کیا شعر کہا ہے غالب نے، نہ وصال یار ملا، نہ وصال یار ملا. آگے کا آتا ہے میرا کام ہے صرف کیوں دینا، شعر اگوں تو پورا کرنا ہوتا ہے پراوا. اصل میں آپ شعر کسی اور کا پڑھنا چاہ رہے تھے، لیکن غالب آپ کے ذہن میں رہ گیا. آپ کہنا یہ چاہ رہے تھے نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. واہ 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 واہ. واہ. آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے، لیکن آپ کے ذہن میں آ گیا کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا. واہ 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 واہ، کیا پکڑا یہ تھا ہے. غالب. لو جی شعر ہمارا کام نہیں. آفتاب صاحب اب کے آپ ہنسے ہی ہنسے، اور اس بار جو میں اتنے وثوق سے کہہ رہا ہوں کوئی وجہ ہے. لو جی تیار ہو جائیں سارے بچوں، آپ بھی، ڈاکٹر صاحبہ آپ بھی، جگت ہونے لگی ہے. لو جی ازر رنگیلا دیکھ لو کہ فینسی کھوتا ہوندا. فینسی کھوتا اچھی پائن فینسی کھوتا. ਭੈਣ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਹੱਸੋ. ਪਾਇਨ ਕਿੱਦੀ ਮੇਰੇ ਪਾਇਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ. ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨੀਲਾ ਕੁੜਤਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ. ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਸਤ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਵੈਸੇ. ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹਾਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਓਏ ਹਾਸ. ਬਸ लो जी नागी साहब पे एक बात आ रही है. अब तो आप यकीनन लोड पोट होने वाले हैं. तो आ सीधी जुगो सुटिया कर, तू है बोर करना पहले. लो जी नागी साहब सुपरमैन है तो बस की छत पे सफर कर रहा है. ਓਏ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਚੁੱਪ ਕਰ. तुम्हारी ये जरूरत. ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ. ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੂੜ ਹੈ. ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਟਅਪ ਲਵਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ. अच्छा उन अपने सिर ते जी उन्हें मैंने भी मना करता है. यानी तुम दोनों ने मुझे मुश्किल में डाल दिया है. मैंने कहा कि आफ्ताब साहब सियासत पे गुफ्तगू ना कर लें. रहने दें, आपने क्यों करनी सियासत पे गुफ्तगू. यानी सियासत से भी गया और जुगत से भी गया. चलो जी फिर मैं आपको दिखाता हूँ जूडो कराटे के 2-4 आसन. ये क्या किया. ये मैंने जापानीज को करते हुए देखा था, और आपको पता है मेरी रगें खींच चुकी हैं. ओए सालियो मेरे सीधा करो ए. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲਵੋ ਨਾ. ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਆਸਨ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ ਨਾ. ये तो एक आसन हुआ, अभी 3 रह गए हैं. बाकी बह के हुन खिंचा पै गई ना. ये क्या है. ਚੈਨਲ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੇ ਕੱਢੋ. नहीं हाँ फाक ची दोस्ती जिंदाबा. कुत्ते दी आवाज भी तो कड्डो ना. ओ सालियो कुत्ती दी नहीं बिल्ली दी होंदी. लो जी वहां पे मुझे चीन में एक भुट्टो साहब का डाई हार्ड फैन मिल गया. अच्छा. उसने तो पीपल्स पार्टी का तराना भी सुना दिया. आहा. ईदा 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 डिडडडा चकटा डिडडडा हो बीजा तीर बीजा आले हे दुश्मन आते आपो उता इशाबा रास्ते पारे बलूचारा उता इशाबा रास्ते पारे बलूचा पिता तीर बीजा आले दुश्मन आते आपो जिये 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 बोटो नी हाँ पाक चीदू सीधी दाबा. मैं उससे बड़ा मुतासर हुआ. यही नहीं बल्कि 2 शख्सियात और मिली. अपना तारिक जमील साहब मिले. लो जी तारिक जमील साहब से मैंने सलाम लिया. उन्होंने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम राणा साहब. लो जी फिर दूसरी मुलाकात मेरी जाकिर नाइक से हुई. मैंने कहा जाकिर साहब अस्सलाम वालेकुम. उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम. भाई ने एक सलाम किया है, और चूंकि ये मेरा मुसलमान भाई है मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसके सलाम का जवाब दूं. मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम. मैं उनकी इस बात से इतना मुतासर हुआ, लो जी मैंने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया.
اور مجھ سے وہ بڑے امپریس ہوئے. پھر ادھر سے مولانا طارق جمیل صاحب بھی آئے اور دیکھ کے کہنے لگے, ارے بھائیوں میں کیا چل رہا ہے, کیا باتیں ہو رہی ہیں, کس چیز پر گفتگو ہو رہی ہے, ارے ہمیں بھی تو پتہ چلے, ہم بھی تو جانیں. یہ دنیا مچھر کا پر ہے میرے دوستوں, میرے بھائیوں, اور ایک دن سب ختم ہو جانا ہے. چلو چلو اٹھو, چلو کھانا کھانے چلیں ورنہ سب ختم ہو جانا ہے. تو دن حضرات, آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ شو میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ ناصر.